हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए स्मॉल टॉपिक फ्रॉम सेल बायोलॉजी एंड वेरी स्मॉल टॉपिक विच इज़ लाइसोसोम। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, इंटरेस्टिंग होगा। हम देखेंगे कि लाइसोसोम बनता कैसे है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके ये एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द लेक्चर विल डिस्कस वन और टू क्वेश्चन फ्रॉम द नीट एग्जामिनेशन दैट हैज़ बीन आस्क्ड in recent years. Okay, so before going into the detail, first let me introduce myself. My name is Danish Umar. I have done PhD in immunology from National Institute of Immunology, New Delhi, and Masters in Biotechnology from IIT Bombay. Apart from this, I've also qualified prestigious exams like CSIR NET in Life Sciences and IIT JAM with pretty decent All India ranks. Okay, so this is my brief introduction in just 30 to 40 seconds. 30 to 40 seconds. Okay, now let's jump into the topic of this topic of today's discussion, which is lysosome. Now in layman's term, अगर कोई आम आदमी पूछे कि लाइसोसोम क्या है, तो we can define that lysosome is nothing but a bag of hydrolytic enzymes. बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं और ये बैग किस चीज़ का बना होता है? इट इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या हुआ? इट इज़ नथिंग बट ए लिपिड बाइलेयर और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होंगे। ओके, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डिड्यूब ने 1955 में। और इट गॉट so important, it was so important discovery that he got Nobel Prize in 1974 along with two other scientists. One of them was George Palade, who discovered ribosomes. Okay, so in 1974 he got Nobel Prize for its discovery. Now, as I said, it is a membrane bound vesicular structure that contains hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzyme meaning that these enzymes can break biomolecules or complex biomolecules with the help of water. Okay, now these enzymes are active only in acidic pH. Okay, this is very significant. And when we say that these enzymes are only active at pH, यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन अराइज होते हैं और इन जनरल दो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन कि वाई दे आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच ओनली। ओके, और ये क्वेश्चन स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमें ये पता लगे कि साइटोसोल जो होता है, सेल का जो लाइसोसोम के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो स्लाइटली बेसिक रेंज में होता है। 7 to 7.4 का पीएच रेंज होता है साइटोसोल का। तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई एसिडिक एनवायरनमेंट विद इन द लाइसोसोम। दूसरा कि हाउ लाइसोसोम मेंटेन्स एसिडिक पीएच। ओके, we'll see that how it maintains and why it is very important that these hydrolytic enzymes always function at acidic pH. Okay, now before discussing all these things, I will just discuss 1 or 2 minutes about how this lysosome are basically formed within the cell. So as I said, lysosome are nothing but a bag of different enzymes. Enzymes meaning protein, because 90 to 95% enzymes are protein. So these enzymes, these small dots that I have represented here is basically nothing but enzymes. Okay, these enzymes are synthesized over rough endoplasmic reticulum. Rough matlab rough, why rough? Because it has ribosomes studded over it. Okay, and these ribosomes are involved in protein synthesis. Now, this enzyme starts its journey from endoplasmic reticulum. Once they are formed, they are packed into a vesicle, and then they go and fuse with the cis part of the Golgi apparatus. Now, they travel from cis to transphase. Okay, cis to transphase. अब यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, सारे एंजाइम सिंथेसाइज हुए, वो पैक हुए एक वेसिकल में, जाके फ्यूज करेंगे सिस के साथ और सिस के बाद ट्रांस की तरफ मूव करेंगे। और इस जर्नी में ये सारे प्रोटीन्स, सारे एंजाइम बेसिकली एक्टिवेट होते हैं और मेच्योर होते हैं सो दैट इट कैन फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल विद इन द लाइसोसोम। ओके,
नाउ उसके बाद जब ट्रांसफेज के पास आ जाएंगे सारे मॉलिक्यूल्स, तो ये असेंबल हो जाएंगे एक मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, लिपिड बाइलेयर के अंदर, और फाइनली मैच्योर होके बाहर आ जाएंगे एज ए लाइसोसोम। सो दैट्स हाउ दिस cell organelle is formed within the body. Now its function, it has many functions. Two of them I have mentioned over here. One is autophagy, the other one is phagocytosis. I'll explain these two terms in a little while. But okay, so autophagy, first let's look at the autophagy. So autophagy means the clearance of all those unwanted material from the cellular environment or cytosol. So cytosol is basically made up of whole lot of different things, different biomolecules. So it may happen कि कुछ उसमें से डिसफंक्शनल हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो उनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सारे प्रोसेसेस जिसमें ये सारे अनवांटेड मटेरियल रिमूव होंगे, वो कहलाएगा ऑटोफाजी, और उसमें लाइसोसोम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली लाइसोसोम क्या करता है, वो सारे जो अनवांटेड मटेरियल और डिसफंक्शनल मटेरियल होते हैं वो एक मेम्ब्रेन में पैक हो जाते हैं, लाइसोसोम जाके उसके साथ फ्यूज कर जाता है और फिर वो डिग्रेड और डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो जाता है विद इन द सेल। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोफाजी। फैगोसाइटोसिस समझने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट सेल के बारे में जानना होगा। हम जानते हैं कि मैक्रोफेजेस बहुत सारे टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल लिवर में होता है कुफर सेल। तो ये जो मैक्रोफेजेस हैं उसके अंदर लाइसोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो सपोज करो कि ये जो मैक्रोफेज है, इसने कोई एक बैक्टीरिया को सेंस किया और इसने उसको इनगल्फ कर लिया। तो जैसे ही इनगल्फ होगा एक मेम्ब्रेन पैकेट में आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैगोसोम। अब इस फैगोसोम के साथ ये लाइसोसोम जाके फ्यूज हो जाएगा। और हम जानते हैं कि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये सारे बैक्टीरिया को डिग्रेड आउट करेगा और इससे जो निकलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसको या तो सेल के अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा या सेल के बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज द होल फाइगोसाइटिक phenomena, and lysosome play very important role. Now we can see that if the lysosomal function is somehow hampered, तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं, ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो रुक जाएंगे और उसके बाद एक डिजीज काइंड ऑफ कंडीशन ऑरिजिनेट हो सकता है, जिसको हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज भी बोलते हैं। चलिए अब हम एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि ये एसिडिक, मैंने वहाँ पर दो क्वेश्चंस के बारे में बोला था कि वाई एसिडिक एंड हाउ इट मेंटेन्स द एसिडिक इन्वायरमेंट। ओके, सो एसिडिक क्यों, क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये सारे एंजाइम्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और चूंकि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पैक होता है, तो ऐसा हो सकता है कभी कि सेल के अंदर ही ये रप्चर हो जाए और सारा का सारा कंटेंट रिलीज हो जाए। लेकिन चूंकि ये एक्टिव एसिडिक पीएच पे ही होते हैं और साइटोसोल का जो पीएच होता है वो बेसिक रेंज में होता है, तो जैसे ही ये रप्चर होगा ये सारे के सारे एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएंगे और सेल को मेजर कोई हार्म नहीं होगा। तो ये पूरा सिस्टम इवॉल्व इसीलिए हुआ है कि एसिडिक पीएच पे मेंटेन रहे, सो दैट कि सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सीडेंटल केसेस में कुछ उस पे बुरा असर ना पड़े। ओके, सो दिस इज वाई it is maintained at a highly acidic environment. Okay, so next is how it maintains the acidic environment. तो लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन होता है वहां पर एक स्पेशल क्लास के प्रोटीन होते हैं जो H प्लस को साइटोसोल से उठा के वेसिकल के अंदर, लाइसोसोम के अंदर पंप करते रहते हैं। और H प्लस मतलब प्रोटोन मतलब जितना ज़्यादा प्रोटोन होगा, जितना ज़्यादा H प्लस होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। और दैट्स हाउ इट मेंटेन्स acidic environment. Okay, so this was all about the lysosome. It is discovered by Christian Didier. It is nothing but a membrane bound structure, contains hydrolytic enzyme. It is active only at acidic pH. It actually matures at trans part of the Golgi apparatus, and it performs autophagy and phagocytosis. Okay, now let's look at one or two questions that has been asked in the NEET examination. So let's look at this question. This question requires that identify the incorrect or not correct statement. So first statement is what?
लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये एलिमिनेट हो गया बिकॉज इनकरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। Lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. No, this is incorrect. This is the right answer because packaging and final processing happens over Golgi apparatus, Golgi body, transphase of the Golgi body. Okay. Now the last part is the lysosome have numerous hydrolytic enzymes. This statement is also true. Okay, so the correct answer is lysozyme are formed by the process of packaging in endoplasmic reticulum. This is actually incorrect statement. So correct option would be this. Okay. Thanks a lot. This is all about the lysosome. Hope I have explained it well. Thank you.